Hi, welcome to the new series covering all the chapters of Geography Class 9th Contemporary India First. The first chapter is India size and location. So here is the brief content as to what we will be reading in this chapter. So the first one is location. India is a vast country and lying entirely in the northern hemisphere. By northern hemisphere, it means above the equator part in north side is known as northern hemisphere and below the equator part in south side is known as southern hemisphere. उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध. सो दीज आर द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ आवर कंट्री. सो पहले ये जानते हैं कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स होते क्या है. सो लैटिट्यूड्स ऑल द पैरेलल सर्किल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. इनको अक्षांश रेखाएं भी बोलते हैं. जो इक्वेटर के अपर साइड का पार्ट है उसको उन लैटिट्यूड्स को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और इक्वेटर के साउथ साइड जो लैटिट्यूड्स उनको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं. जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है जिसे अपन इक्वेटर, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा भी कहते हैं, ये पूरी वर्ल्ड को कंप्लीट 2 इक्वल भागों में डिवाइड करती है. तो लेकिन लैटिट्यूड्स जो हैं वो अनइक्वल्स हैं क्योंकि लैटिट्यूड्स जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ती हैं वो नैरो होती जाती हैं अनलाइक द लॉन्गिट्यूड्स. सो द लॉन्गिट्यूड्स, the line of reference running from the north pole to south pole is called the meridian of longitude. So longitudes सारी इक्वल है लेंथ में, तो इनको नंबरिंग करना टिपिकल था. तो एक ऐसी लाइन को आइडेंटिफाई किया सारी कंट्री ने मिलके जो ऐसी लॉन्गिट्यूड जो पूरे विश्व को कंप्लीट 2 भागों में 2 इक्वल भागों में डिवाइड करती हो, तो उनको जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है वो लाइन उन्होंने आइडेंटिफाई की जो आज के टाइम में ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरती है. सो इसके प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसके ईस्टर्न साइड वाला पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड प्राइम मेरिडियन के वेस्टर्न साइड वाला पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फेयर. सो इंडिया लाई करता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ लॉन्गिट्यूड, इसलिए सारे इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स हैं जो कैपिटल ई डिनोट करते हैं. और लैटिट्यूड के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, इसीलिए जो लैटिट्यूड्स हैं उनको अपन कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. सो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स. सो द पार्ट बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज called the tropical region and upper one is called subtropical region. So in the southeast we have Andaman and Nicobar Islands, and the capital of Andaman and Nicobar is Port Blair, and in the southwest we have the Lakshadweep Island and the capital of Lakshadweep is Kavarati. Remember this. So move forward to the next topic which is size. So the landmass of the India has an area of 3.28 million square kilometer. ये पूरे ग्लोबल का 2.4% geographical area है. And India is the 7th largest country of the world in terms of territorial area, and we are the 2nd largest country of the world in terms of population, which is after China. So India has a land boundary of about 15,200 km and the coastline of mainland and the Andaman Nicobar and Lakshadweep Islands combinedly is 7,516 km approx. So how can you calculate the population density of any country? So it's simple, just divide the country's population with the total land area and you can get the population density of any country. You can calculate population density of your own state also. You just simply divide the state's population with the total land area of the state. Population density means जनसंख्या घनत्व कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं. So in the north we have young fold mountains which is Himalayas. There are 3 types of mountains. First is fold mountains
The Himalayan mountains and the Alps, which is located in Central Europe in the surrounding area of Switzerland, are the young fold mountains, and the Aravalli range in India is one of the oldest fold mountains system in the world, and ये आज के टाइम में एक हिल बन चुकी है क्योंकि इतने सालों से सोइल इरोजन की प्रोसेस यहाँ पे हो रही थी. सो द एप्लांचियंस इन द नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल माउंटेन्स जो रशिया और यूरोप को डिवाइड करती है, ये माउंटेन्स भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं. सो नेक्स्ट इज ब्लॉक माउंटेन्स. ये माउंटेन्स फॉर्म्ड होते हैं जब दो बड़े बड़े ब्लॉक अपलिफ्ट हो जाते हैं, वर्टिकली अपलिफ्ट हो जाते हैं, तब बीच में जो एरिया जो धस जाता है वो तो कहलाता है गार्बन, और जो साइड वाले जो अपलिफ्टेड जो एरियाज हैं वो उनको कहते हैं अपन हॉटस्ट. सो इनके परफेक्ट एग्जांपल है राइन वैली. राइन वैली यूरोप में है, एंड द वॉसगस माउंटेन ये भी यूरोप में है, फ्रांस के अंदर. ये इनके बेस्ट एग्जांपल्स हैं. So the third type of mountain is volcanic mountains. So volcanic mountains are formed due to the volcanic activity like the Mount Kilimanjaro in Africa and Mount Fujiyama in Japan are the best example of such mountains. So move forward to the next topic, which is Indian Standard Time. So as you know, Earth rotates on its axis from west to east side. So the eastern side of the prime meridian gets sun rays earlier than the western side. It completes one rotation, which means 360 degree in 24 hours, which means 15 degree equals to 1 hour and 1 degree equals to 4 minutes. So longitudes जो है वो सारी इक्वल है. इनको नंबरिंग 15 डिग्री के गैप में दी गई. जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 15 डिग्री का गैप है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री अप टू द 180 डिग्री. सो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो एक राउंड शेप है, जस्ट ऑपोजिट साइड में राउंड शेप है. और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ही अपन इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, जहाँ पे पूरे 12 घंटे का डिफरेंस है. सो इंडिया जो है वो कंप्लीट 0 डिग्री या फिर ग्रीनविच लाइन से कंप्लीट 5.5 घंटे अहेड है, आगे है. इसका क्लियर मीन है 5.5 घंटे कैसे, 5 आवर तो हो गए 75 डिग्री पे, फिर 15 का हाफ जोड़ेंगे अपन 75 के अंदर, तो 15 का हाफ होता है 7.5, तो 75 में आप 7.5 जोड़ोगे तो क्या आएगा 82 डिग्री 30 नॉट ईस्ट. इसीलिए ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो मेरिडियन लाइन है ये मिडिल पाथ चुना गया. यही रीजन है इसको स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए. तो 5 घंटे प्लस हाफ आवर, इसलिए प्लस 5.5 घंटे ग्रीनविच लाइन से अपन अहेड है. इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो इंडिया के जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हैं, जो 68 डिग्री और 97 डिग्री ईस्ट, इनमें अप्रोक्स 30 डिग्री का गैप है. तो 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे 2 आवर. तो जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात यहाँ पे में वहाँ पे सनराइज का जो टाइम है वहाँ पे 2 घंटे का टाइम ले गए, टाइम डिफरेंस है 2 आवर्स का. सो एक रीजन ये भी है कि थ्रू आउट द कंट्री होमोजीनियस टाइम रखने के लिए 82 डिग्री ईस्ट 30 नॉट ईस्ट जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है उसको चूज किया गया. सो अनदर क्वेश्चन अराइज हियर इज कि कन्याकुमारी और कश्मीर में टाइम डिफरेंस या फिर ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट और वेदर का एक्सट्रीम फिनोमिनन क्यों फील नहीं होता कन्याकुमारी पे. जैसे आपने सुना होगा कि बेंगलोर का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, ना वहाँ पे एक्सट्रीम विंटर होती है ना वहाँ पे एक्सट्रीम समर होती है. अनलाइक द इन नॉर्दर्न इंडिया लाइक राजस्थान के अंदर एक्सट्रीम समर भी होती है और एक्सट्रीम विंटर भी होती है. इसका मेन रीजन ये है कि जो एरियाज इक्वेटर के आसपास में लोकेटेड होते हैं वहाँ पे वेदर और
सीजन्स का इतना वेरिएशन नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर से अपवर्ड साइड में जाते जाओगे, फार साइड में जाते जाओगे, पोल की तरफ, चाहे नॉर्दर्न पोल या फिर सदर्न पोल की तरफ जाते जाओगे, तो आपको सीजन्स का वेरिएशन, टेम्परेचर का वेरिएशन आपको देखने को मिलता जाएगा। तो यही मेन रीजन है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन लर्निंग. If you really like the video, then do like, share and subscribe the channel. Have an awesome day.